गोबिंद सिंह तालिबो मतलूब गुरु गोबिंद सिंह तेगरा फताह गुरु गोबिंद सिंह जानो दिल हर राह गुरु गोबिंद सिंह साहिब अकलील गुरु गोबिंद सिंह ज़िब हक तजलील गुरु गोबिंद सिंह खाजने हर गंज गुरु गोबिंद सिंह बरहमे हर रंज गुरु गोबिंद सिंह दावरे आफाक गुरु गोबिंद सिंह दर्द आलम ताक गुरु गोबिंद सिंह हक खुद वसाफ गुरु गोबिंद सिंह बरतरी औसाफ गुरु गोबिंद सिंह खास गा दर पाए गुरु गोबिंद सिंह कुदसियां बाराए गुरु गोबिंद सिंह मुकबला मदाहे गुरु गोबिंद सिंह जानो दिल राहे गुरु गोबिंद सिंह। गुरु की साजी नवाजी साध संगत जियो, आओ फतेह दी सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज दी जिहड़ी लड़ी है ये असी उस जिहड़ी असी एक अपनी ट्रैडिशन है उहदे विच जिहड़ियां सिख शहादतां दा सफ़र है उन्हां दी जिहड़ी एक लड़ीवार कथा करांगे ते उहदा दूजा दिन है ते जिहड़ी जगह है कुंभ लाइब्रेरी है ते चैनल विरसा चैनल दे राही। ते कल तुसी सुनिया सी कि जदों आनंदपुर साहिब दे विच गुरु साहिब ते उन्हां दा परिवार ते उन्हां दे सिंह बैठे सन, क़याम कर रहे सन ते एक मुगल दरबार तो एक बंदा सफ़ीर कोई सुनेहा कोई पैगाम लेके आया सी पातशाह लई। ते पातशाह ने उस घड़ी नूं उस समय नूं उस नज़ाकत नूं पछाणिया ते फिर मुगलों का यह सी कि तुसी जिहड़ी जगह ते बैठे हो आनंदपुर साहिब के किले अंदर इसनूं खाली कर दो, क्योंकि एक हुकूमत अपने अरूज ते है, जोबन ते है, ते उस हुकूमत दे विदन ही उस सिस्टम दे विदन ही एक होर जो नवा सिस्टम है वो जन्म लै रहा है। जन्म उन्हें लै लिया वा, उन्हें प्रकाश अपना लै लिया वा ते उहदे कोल ओ हर एक नवी ते न्यारी भाव यूनीक जिहड़ियां बख्शिशां ने उहदे कोल पईयां ने कि वो इस धरती दे इस काल दे उपर विचर रहे लोकां नूं उन्हां नूं इस जिहड़ी काल दी जिहड़ी दवंद है इहदे तो मुक्त करा सकन। भाव यह है कि मीरी ते पीरी दोवां ते हुण खालसा जिहड़ा है वो काबज़ है। इस करके सिस्टम विदन सिस्टम दे विच होण दे कारण सरकार दे नाल जिहड़ी अपोजिशन है उन्हां दी वो बनी हुई है, क्योंकि एक स्पेस दे विच एक खला दे विच फैलिया होया मुगल काल ते अपनी बहादुरी अपनी लड़ाइयां दे लई मशहूर थावां बर थावां नूं कब्जा करदा होया उन्हें हिंदुस्तानी धरती नूं अपने अंदर लै लिया सी। ते उस सिस्टम दे विचों एक होर नवा
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਔਰ ਤਖਤ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ, ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਕੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਦਊ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨ ਮੁਰੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਬੇ ਕੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮੁਰੀਦ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਸਨ ਉਹ ਸਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਜੀਮ, ਮੁਗਲ ਰਜੀਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਕਰਾਅ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਟਕਰਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਕੂਮਤ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਾਇਵਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਖਿੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਦੈਵੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਛੋਟੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨਿਆਰੇਪਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੈਵੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸ਼ਦੀਦ, ਭਾਵ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ। ਨਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇ ਤੋ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਉਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭੈ ਤੋਂ, ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਹੀਣਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਪਰਤੀਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੇਡ ਕੇ, ਹੱਸ ਕੇ, ਗਤਕਾ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਹੋਰ ਰੱਬੀ ਦਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ रिवायतों के अनुसार सिख इतिहास के अनुसार योगी अल्लाह यार खान का योगदान जो उन्होंने पाया है ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँचा रहे हाँ उस गंज शहीदां ते शहीदां ने वफा दे राहीं क्योंकि गुरु नानक की जिहड़ी सुरती है गुरु नानक पातशाह की जिहड़ी बख्शिश है गुरु नानक पातशाह जिहड़ी सिक्खी है वो धर्म काल दियां जिहड़ियां बाउंडरीज़ नूं पार कर जाती है उस प्यार दे राहीं उस वैराग दे राहीं उस बैराग दे राहीं उस बख्शिश दे राहीं योगी अल्लाह यार खान उस सुरती दे विचों अपनी कलम नूं चला रहे ने भावें कि वो दूजे फेथ नूं बिलोंग करते सन ते हुण जदों अब कल असीं 11 मरसीए पढ़े सी मरसिया हो गया कि जे किसी पेन नूं बहुत ही भावुकता पर अंदाज विच बयान करना होवे भाव कि ह्यूमन की जिहड़ी सुरत है ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਥਰੂ ਉਤਾਰਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਸੀਏ ਸੁਣਾਓ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਰਸੀਏ ਨੇ ਮੀਰ ਅਨੀਸ ਅਲੀ ਦਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਸੀਏ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਰਦੂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਸੀਏ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੀਆ ਲੋਕ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵੈਰਾਗੀ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬੈਰਾਗੀ ਵੀ ਹੈ पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਨਾ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੈਰਾਗਮਈ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਸੀਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਰਸੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਫੀਰ ਆਇਆ ਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 12ਵਾਂ ਮਰਸੀਆ ਹੈ मशहूर है कि पाए गदा लंग भी नहीं अपने लिए खुदा की जमी तंग भी नहीं लोगों से हमको आरज़ुए जंग भी नहीं ये हुण 10वें पातशाह कह रहे ने कि सारी जिहड़ी कुल धरत है बेगमपुरा शहर को नाओ ये सारी खालसे दी है ये सारी साडी है सानू ते कोई जगह तो नहीं रोक सकदा पर असीं ये चाहुंदे हां कि किसी का खून ना बहे वरना कोई दलेरी में पासंग भी नहीं मजबूर हो गए तो लड़ाई दिखाएंगे फिर तेग खालसा की सफाई दिखाएंगे कि जे सानू किसी ने मजबूर किया फिर सानू तेग दे जौहर दिखाने पैणगे फिर सानू मैदान जंग के अंदर उतरना पएगा ते फिर सानू तेग नू हथ पाना पएगा चुकार अज हमा हिलते दरगुजश्त हलाल अस्त बुरदन बा शमशीरे दस्त कि हुण असी तेग नू हथ पाया है उदों पाया है जदों सारे हीले वसीले खत्म हो गए ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਰਿਆਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਨ ਹੈ पिन्नी रह नड़िए चमकन तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे वही समा है तारों की छाऊं किले से सतगुरु रवां हुए उस आनंदपुर साहिब नूं छड्डना पै रहा है जिहदे विच सिख रिवायतां जुड़ियां ने कस के कमर सवार थे सारे जमा हुए सिख तां पहलां तो तैयार सन कि जिधर सिखां दा गुरु उधर सिख क्योंकि गुरु है ते सिख है जो तुसी गुरु ते भरोसा कर दिता है पूर्ण विश्वास पूर्ण यकीन रख दिता है फिर उत्थे अकल ते बुद्धि दी लोड़ नहीं पैंदी बुद्धि ते अकल दी लोड़ उत्थे पैंदी है जदों तुहानूं अपने गुरु ते भरोसा नहीं है अपने इष्ट ते भरोसा नहीं है जे तुसी गुरु नूं अपने हिरदे अंदर उतार दिता है
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਰਕ ਦੀ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਅਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਸੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, आगे लिए निशान कई शेर ए यहाँ हुए कुछ पीछे जान निसार गुरु दरमिया हुए। क्योंकि गुरु ते सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है सिखां दा, जिवें चंन ते तारे, इसे करके उन्होंने गुरु नूं विच रखिया है। चारों पिसर हजूर के हमरा सवार थे, गुरां दे चारे लाल उन्हां दे नाल सन, जोरावर और फतेह, अजीत और जुजार थे। ऐसी सतगुरां सिखां दा ते साहिबजादियां बारे हुण अगला जिहड़ा शेर है, वो कहंदा है मरसिया दे विच, सतगुरु की माएँ साथ थी, सतगुरु की माँ के साथ थी हम रकाब शेरनी, शेर ए यहाँ के साथ गर्जे के कूच कर दिया कुल खानदां के साथ। क्या बावफा मुरीद थे पीरे जमा के साथ, सतगुरु जहाँ पे अपना पसीना गिराते थे, सिंह उस जगह पे अपना लहू तक बहाते थे। जिथे गुरु साहिब अपना पसीना गिराउंदे सन, सिख उत्ते अपना खून तक बहा देंदे सन। पर यही इत्थे गल मुकदी नहीं, तुसीं अगे चल के देखोगे कि सतगुरु सिखां नूं किन्ना प्यार करदे सन, ते क्यों ना सिख अपना खून बहाउण। देखा फर्श पे जिस घड़ी आली जनाब को, पाबोसियों की पड़ गई हर शै खुशाब को। ते जदों उन्होंने देखा कि गुरु साहिब घोड़े ते चढ़े ने, ते सिखा ने अपने जेड़े पाबोसियों तो भाव कि गुरां दे जेड़े चरण सन, वो चुमने शुरू कर दिते। अगली गल, कदमों को चुमता था कोई सिख रकाब को, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਕੇਰਾ ਹੁਆ ਸਿਤਾਰੂ ਨੇ ਥਾ ਮਾਹਿਤਾਬ ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਲਵਾ ਜੋ ਥਾ ਫਲਕ ਪੇ ਵਹੀ ਥਾ ਜਹਾਨ ਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਥੀ ਰਨ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਂ ਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੋਂਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਣੇ ਕੋ ਅਨ करीब शहर का ज़हूर था, सब मिट चुके थे सुबह के तारे पे नूर था। हुण सवेर होने वाली सी, अमृत वेला होने वाला सी, सिर्फ इको तारा बचा सी सवेर वाला। पाताल कर चुका शाहे मशरिक अबूर था, थोड़ा मुकाम उफक में खुर्शेद दूर था। ते हुण जिहड़ा सूरज सी निकलण वाला सी, अद्धी रोशनी ते अद्धा अंधेरा सी। फीका फलक का चांद था नानक के चांद से, पर जिहड़ा चंद सी ना, वो इदां लग रहा सी कि गुरु गोबिंद सिंह सामने वो भी फिक्का पै रहा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। चेहरे उड़े हुए थे सितारे थे मांद से, मशरक की सिमत इतने में पौ फूटने लगी। हुण लो होनी शुरू हो गई, रोशनी होनी शुरू हो गई। महताबी रुख पे चांद के फिर छूटने लगी। ते फिर इदां लग रहा सी कि चंद आप धरती ते उतर आया है। एक चंद नहीं, जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, इते चानन होंदिया गुरब नूं कोर हंदार। तो गुरु ता गुरु है ना। अगली लाइनों लिखते ने, जोजा के साथ कोस से फलक टूटने लगी, लुत्फ़ नसीम खलक के खुदा लूटने लगी। उतरा हुआ अरूशे फलक का सिंगार था, गुम कहकशां के सीने में 9 लखा हार था। मतलब एक कंपैरिजन करा रहा है मैटाफोरिकल दे राही यूज करके कि गुरु साहिब दे सामने सारी कायनात फिक्की लग रही सी, सरूर दे झरने बह रहे सन। सिखां दियां आत्मावां दे विच इवें लग रहा सी कि कोई आकाशी गैबी बिजली प्रगट हो गई है।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੁੱਟਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਮਰਸੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਅਬ ਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਕੇ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਥੇ ਚਾਹਤੇ ਬੁਝਾਏ 12 ਪਹਿਰ ਕੀ ਪਿਆਸ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਖ 12 ਪਹਿਰ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਔਰ ਕਰੇ ਸਪਾਸ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ परमात्मा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। जपजी का जाप इस घड़ी पढ़ना जरूर था, पढ़ के ग्रंथ और बढ़ाना जरूर था। प्रोफेसर पूर्ण सिंह लिखते हैं कि जपजी सिखा नूं नवीं रूह फूक दिंदा, हर रोज फ्रैश कर दिंदा है। ते जिहड़े सिख दे हिरदे अंदर जपजी नहीं पढ़ी जाती रोज, वो मुर्दे वांगू टुरिया फिरदा है। सरसा नदी का कंडा है, पिछे मुगल फौज है, अत ते शिद्दत दी प्यास है, फिर भी जपजी साहिब का पाठ कर रहे हैं सिख। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ था, सर पे वक्त आ गया आशा की वार का, साजों की जेरो बुम का, चढ़ाव उतार का, मनशा था कलगी तर के दिले बेकरार का, मौका मिले तो कर ले भजन किरदगार का। कि सानू किते मौका मिले बैठ के उस रब दी बंदगी करिए, उस रब दी इबादत करिए। जब महवे बंदगी हुए नानक के जानशीन। हुण जैसे ही सिख इबादत करने लई बैठे ने सरसा नदी दे तट दे उपर, ते होया कि आ टूटे खालसे पे अचानक कई लईन, लईन तो भावे लानती, मुगल फौजा ने बंदगी करते हुए सिखां ते हमला कर दिता। बदबख्तों ने जो वादा किया था बिसर गए। जिन्होंने वादा किया सी कि तुसीं किला खाली करोगे, असीं तुहानूं कुछ नहीं करेंगे, तुसीं निकल जाओ, पर गुरु साहब ने सिखां नूं कहा सी कि यह भी एक फंद है, एक चाल है, पर सानूं किला खाली करना पएगा। ते आके उन्होंने अपना वादा तोड़ दिता। नामर्द कौल करके ज़बान से मुकर गए, गोबिंद सिंह के शेर भी फौरन बिफर गए। तो खालसा तो हमेशा जागदा है, खालसा हमेशा सुचेत है, क्योंकि खालसा दे नाल गुरु है। जैसे ही मुगलों ने हमला किया, सिख एकदम अपनी पोजीशन दे विच चले गए। गुरु साहब आसा दी वार दे विच लीन ने, मगन ने, तलवारें सूत सूत के रन में उतर गए। इवें जिवें चाह चढ़दा है ना, कोई अपना प्यारा आया होवे, इवें जाके मुगलों नाल लड़ाइयां करन लग पे। मैदान को एक आन में चौरंग कर दिया, चारों तरफ मैदान को घेर दिता कि कोई साडे गुरां वाल ना आवे। रुस्तम भी आया सामने तो दंग कर दिया। रुस्तम एक बहुत बड़ा तेज दा नहीं होया है, कहंदे कि जे ओ भी सामने आया, सिखां ने ओनू भी फड़ दे विच झटका दिता। हरचंद टूट टूट के गिरते रहे लई। ते एवें ही सिखां ने उन्हां नू कटना शुरू कर दिता, मुगल सिपाहियां नू। ਸਿੰਘੂ ने एक इंच भी छोड़ी नहीं जमी। जिथे लाश सिंह खड़ा सी, उत्थे ही खड़ा है। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ गुरु वाल एक इंच भी सिखा ने मुगलों ਨੂੰ नहीं आन दिता। ਇਹ ਸੀ अपने गुरु का प्यार। लंगर किसी शेरों का मिलता भी है कहीं, कि ऐसा लंगर किते तुसीं देखिया मिलदे होया? मुगलों ਨੂੰ ਇਹ लंगर मिल रहा सी। बेशक नहीं नहीं, कभी हाँ हाँ नहीं नहीं, मशरूफ याद हक में गुरबेद रेग थे, क्यों मौत से लरजते वो फरजंद तेग थे। बेमिसाल ओ बेनजीर, तू सतगुरु हमारा है। हुण अपने फेथ नूं दस रहा है कि हे पातशाह, तुसीं बेमिसाल हो, बेनजीर हो, क्यों ना सिख तेरे तो कुर्बान होण, क्यों ना सिख तुहाडे तो अपनी आप अपनी जाना निछावर कर देन। वाहिगुरू के बाद तेरा ही सहारा है, क्योंकि सिख दा गुरु ते अकाल पुरख एक मिक ने। इस करके सिखां दे इस धरती काल दे विच गुरु ही सहारा है, और है भी कौन साडे इत्थे। हो काश सबको तुझको खुदा जितना प्यारा है, तेगों के साए में कहां दाता बिसारा। उदों लड़ाई चल रही है, तेगां वरस रहीआं ने, परिवार नाल है, फिर भी तुसीं भजन ते बंदगी दे विच बैठे हो।
तौहीद पर फिदा था वो आली मुकाम था, तीरों के मी में याद खुदा तेरा काम था। याद अकाल पुरख का सबको सबक दिया, खंजर की तार पर भी वर्क दर वर्क दिया, करके असल सिखाया जो मजमू अदक दिया, फिर जालिमों में छीन के सिंगों को हक दिया। रुतबे से मार्फत के हम आज गिर गए, सोहबत से बुत परस्तों की तकदीर फिर गए, फारिग इबादतों से गर्ज के हुए गुरु। हुण जदों सतगुरां ने आसा दी वार मुकम्मल हुई तो जदों गुरु पातशाह ने अपनी अख खोली, पूछा ये शहजादों से क्यों है गुल चारसू, कि शोर की है। गुरु तां अकाल पुरख दे नाल इक मिक ने उन्होंने उता आप जाणू ने, फिर भी सिखां नूं पुछदे ने कि शोर की है। फरमाए हाथ बांध के चारों ही नेक खूह, सब वाकिया बयां किया सतगुरु को रूबरू। उन्होंने सिखा ने सतगुरु के सामने सारा वाक़या बयान कर दिता कि मुगला ने हमला कर दिता है। सुनते ही जिसको आपके तेवर बदल गए, गद्दी से उतरे तेग उठाई संभल गए। हुण सतगुरु ने तेग उठा ली, असले सजाए कलगी लगाई तबर लिया। हुण वो कैसा समा होएगा ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿਹਰੇ ਨੁਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਕਲਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਸਾ ਸੀਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਮ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। असले सजाए कलगी लगाई तबर लिया, तीरों से खूब ठोंस के तरकश को पर दिया। क्योंकि गुरु साहब तीर कमान दे विच गुरु साहब दा संसार दे कोई सानी नहीं होया। गुरु ने अपनी तीर कमान तीरे नाल पर लिया। कोड़ा मंगा रकाब में जब पांव धर लिया, काबू अन्ना को थाम के एक देव कर लिया। सिंगों में जब रवां हुआ गुरु का समुंद था, वाहिगुरु की फतेह का नारा बुलंद था। हुण जाके गुरु मैदान जंग में चले गए। हुण जदों सिख लड़ रहे सन, उन्हां दे नाल गुरु की बाणी सी। हुण गुरु आप दे रूप दे विच सिखां दे नाल मैदान जंग दे विच ने, जिथे सिखां दे विच पहला बल सीगा, हुण सोचो जदों गुरु नाल चल रहे ने मैदान जंग दे विच, ते सिखां दे विच कैसी शक्ति, कैसी गैबी शक्ति प्रगट होई होएगी। वो देखो रन में तेग बहादुर का लाल है, ओ मारो नजर तेग दे विच गुरु तेग बहादुर पातशाह दा लाल है। वो देखो रन में सरवर फौज अकाल है, तलवार दस्ते रास्त में है, चप में टाल है। ओदे हाथ में तलवार है, ओदे नाल अपनी टाल है। सूरज के सर पे बदर भी है और हिलाल है। जेड़ा सूरज है ओदे नाल पूरा चन है। जदों पूरी अमावस दी रात होवे, काली रात होवे, चन जदों खिड़दा है, ते जेड़े इंसानी दिल ने उन्हां दे विच भी एक उमंगां पैदा हुंदियां ने। हुण जदों गुरु आप मैदान जंग दे विच ने, ते इदां लग रहा कि सूरज भी है, पूरा चन भी है, ओदे नाल नाल नवा चन भी है। ते कैसा दृश्य होएगा। सूरज के सर पे बदर भी और हिलाल है। शमशीर जब हिलाई तो बिजली चमक गई। दहशत में सारी फौज उदू की दपक गई। हुण जदों गुरु साहिब मैदान जंग विच उतरे ने, वो कल्ले थोड़ी ने, उन्हां दे नाल पूरी यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मंड है। ते जदों धरती दे जीवां ने ये वेख्या कि जिहड़ा साडा रैबर है, उस अकाल पुरख दा सानी है, वो आप मैदान जंग दे विच जा रहा है। ते तुसीं सोचो, अपनी सुरती नूं उत्थे लै जाओ कि इस ब्रह्मंड दे विच कैसी उथल पुथल होई होएगी। ते ਉਹ ਜਿਹੜੀ तलवार, ਉਹ ਜਿਹੜੀ किरपान दी, ਉਹ तेग दी ਜਿਹੜੀ लिश्क है, बिजली है, उसने वो बिजली तो प्रगट होनी सी, क्योंकि गुरु जो आप मैदान जंग में आ रहा है। जो गुरु पातशाह दी ਜਿਹੜੀ तेग है, उस मैदान जंग में अपना ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ अपना दैवी प्रकाश है, उस मैदान जंग में होएगा। ते इंसानी सुरतियां कित्थे बर्दाश्त कर सकन। ते ਜਿਹੜੀ दुश्मन दी फौज सी, ओदे तरथली मच गई। सदगुरु को देख कर पड़ गई दुश्मन में खलबली। नाजिम को इज़्तिराब था, राजों को बेकली। कहते थे दिन की जब कभी तलवार है चली, सर लेके फिर हजारों के ही बला है टली। हुण तुसीं क्यों जगाया गुरु? अच्छा, अगली गल कहते हैं कि जानू की खैर चाहते हो
मिल के घेर लो। कहते जाओ जे अपनी जाना बचाने चाहते हो, पहाड़ी राजे ते मुगल सिपाही, जाओ गुरु नू घेर लो। किस्मत चली है साथ से फिर इसको फेर लो, सुनकर ये बात टूट पड़े अहले की, हमला किया वो सख्त के थर्रा गई जमीन, हो जाता जेर इस कड़ी रुस्तम भी बिल यकीन, नरगा में आके सतगुरु घबराए तक नहीं, एक टाल पे हजारों को रोके हजार वार, तलवार जब उठाई तो पागे कतार वार। कहने लगे गुरु तो ज्याले बला के हैं। हुण दुश्मन सिपाही कहने लगे कि एक ही पाना वरत गया, सब दाओ कात याद इन्हें फनाए दगा के हैं, गद्दी पे सुलह कुल हैं तो रन में लड़ा के हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀ ਦੇ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਇਹ ਤੇਗ ਇਵੇਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। बढ़ बढ़ के बादशाहों से बंदे खुदा के हैं, हम तो समझ रहे थे पकड़ लेंगे आन में, साबित हुए शेर मगर इम्तिहान में। हुण देखो योगी अल्लाह यार खान दी कलम किवें इस दृश्य नूं खिचदी है। हुण असीं होर 6 मरसियां नूं पढ़ांगे फिर समाप्ति करांगे, समा भी हो गया है, पर इस हफ्ते ही असीं इस अपनी रिवायत नूं इन्हां मरसियां दे राही जानन दी कोशिश करांगे। सतगुरु ने राजपूतों के छक्के छुड़ा दिए, मुगलों को वलवले भी जो थे सब मिटा दिए, दुश्मन को अपनी तेग के जौहर दिखा दिए, कुश्तों को एक आन में पुष्ट लगा दिए, राजा जो चढ़ के आए थे बाहर पहाड़ से, पछता रहे थे जी में गुरु की लताड़ से, देखा जो ही हजूर ने दुश्मन सिमट गए, बढ़ने की जगह खौफ से नामर्द हट गए, कोड़े को एड़ देख के गुरु रन में डट गए, फरमाए बुज़दिलों से कि तुम क्यों पलट गए, अब आओ रन में जंग के अरमा निकाल लो, तुम कर चुके हो वार अब हमारा संभाल लो। क्योंकि ਉਹ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਤਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। आए हो तुम पहाड़ में मैदान जंग में, तुम तो बड़े चानल पहाड़ तो उतर के मैदान जंग में आए हो, बट्टा लगा के जाते हो क्यों नामो नंग में, सुनते हैं तुम के नाज है तीरो तुफंग में, सुनते हैं तुमको नाज है तीरो तुफंग में। गुरु साहब कहते हैं कि ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ तीर अंदाजी का बहुत शौक है, होशियार शह सवार हो माहिर खदंग में, 10-12 तुम में राजे हैं 2 एक नवाब हैं, फिर हमसे जंग करने में क्यों इज्तिनाब है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਨੇ, फिर क्यों साढ़े कोलों जंग मैदान जंग विच आन तो कतरा रहे हो, देखें तो आज हम भी तुम्हारी बहादुरी। काफी समय तो सुनते आए सी कि पहाड़ी राजे, मुगल फौज, अफगानी, दुरानी, हुण आओ मैदान दे विच ते मुकाबला करिए। वो खुकरी की काट पटे की हुनरवरी, हमने तुम्हारे हमले को रोका था सरसरी, अब अपना वार रोकना सब मिल के लश्करी, हमको बफजल ईज़ दी तन्हा ना जानना, कसरत पे ऐंठ ऐंठ के सीना ना तानना। ये कह के उन पे टूट पड़े 10वें पातशाह, इस सफ को काटते कभी उस परे को कह, जमती ना थी हजूर की तलवार पर निगाह, तेगे गुरु पे होता था बिजली का शायबा, एक हमले में था फौज का तख्ता उलट गया, गुर की हवाए तेग से बादल था छट गया। हुण कहंदे कि जदों गुरु साहब मैदान जंग विच आए ते सफा दी सफा पहले तो नजर नहीं जाती, मुगल फौज इन्नी ज्यादा सी कि नजर ही नहीं पै रही सी कि मैदान जंग दे विच जदों तुसीं देखो मुगल ही मुगल फौज है ते सिख गिणती पर ने, ते जदों हुण सतगुरु मैदान जंग विच आउंदे ने ते जिहड़ी उन्हां दी सफावां सन, लाइनां सन, ਉਹ ਐਵੇਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਭਾਗ ਗਏ ਮੂੰਹ ਕੋ ਮੋੜ ਕਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। रस्ता घरों का ले लिया मैदान को छोड़कर, सिंगू ने पुस निकाल दिया झंझोड़ कर, पछताए आखिरिश को बहुत कौल तोड़कर, लाशों में और सरों से था मैदान पट गया, आधे में बेश लश्करे अदा का थट गया कट गया। ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ, ਅਜੇ ਚੱਲੇਗੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਯੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਇਹ ਮਰਸੀਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ याद करिए। तो योगी जी दे तो अगले वर्ष लिख के लाऊंगा, अर्ज से बढ़ के मरसिया सबको सुनाऊंगा, सतगुरु के गम में रोऊंगा, तुमको रुलाऊंगा। अच्छा, जेडे असली तुसी बैरागमई होवोगे वो अगले मरसियां दे विच होवोगे। जदों योग जी दी कलम करामात करदी है, कहंदा कि अगले साल फिर आवांगा, फिर सारे नूं रुलावांगा, दरबार नानकी से सिलेस का पाऊंगा, जोरावर और फतेह का इस दम बयां सुनो, पहुंचे बिछड़ के हाय कहां से कहां सुनो। उन्हें अगले मरसे में डिस्कस करांगे। पुल चुक दी खेमा ते वीरां दा भी धन्नवाद। आओ बुलाओ फतेह गज वज के वाहिगुरू।